A very good afternoon to you all. Today I will discuss a topic related to Unit 5, and you know very well that the Unit 5 is related to the non-conventional energy resources, and today we will talk about the nuclear waste, how the nuclear waste are managed, that whole things we will discuss in today's lectures. So I think we can proceed forward now. What nuclear waste? Why? Why the nuclear waste should be managed? That whole thing I will discuss. So here, recently, nuclear power has entered many discussions as world energy needs rise and oil reservoir diminish. Okay? Why the nuclear energy is a very important topic according to the today's scenario, because the present scenario says that the conventional energy resources are in very limited quantity. Okay, because the conventional energy resources are in very limited quantity, then if we are using conventional type of energy, then what will happen, what would be happen after some time, after years? डेफिनेटली अगर 50 साल के बाद हम बात करें, अगर हम लगातार कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का हम यूज़ करते रहें, तो क्या होगा, एक न एक दिन जो है एनर्जी जो है ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी रिसोर्सेज सारे के सारे डेमिनिश हो जाएंगे। ऑयल रिजर्व, ऑयल्स वगैरह जो रिजर्व है, पेट्रोल डीजल और जो फ्यूल्स वगैरह हैं, जिनकी हेल्प से आपकी ऑटोमोबाइल, बाइक ऑटोमोबाइल, फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, सारे के सारे चलते हैं, तो वो सारे इंजन जो है वो रखे के रखे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ्यूल बचेगा ही नहीं, उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। वो एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होता है। ठीक। So, present scenario, the present scenario is all about our that type of thought in which we will discuss about some points, and that the some that those some points would be related to the non-renewable energy resources. Sorry, renewable energy resources. So, because first point is what, recently nuclear power has entered many discussions। बहुत सारे रिसर्च के वर्क चल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिससे कि हम एबंडेंट क्वांटिटी में एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी जनरेशन एबंडेंट क्वांटिटी में कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर एनर्जी जनरेशन एबंडेंट क्वांटिटी में है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो हमारे डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो बना रहेगा। ठीक है। सो रिसेंटली न्यूक्लियर पावर हैज एंटर्ड मैनी डिस्कशंस एज वर्ल्ड एनर्जी नीड्स राइज एंड ऑयल रिजर्व्स डिमिनिश। क्या होता है वर्ल्ड एनर्जी नीड? जो वर्ल्ड की एनर्जी के लिए नीड है, जैसे तुम्हारे घर में पंखे हैं, लाइट है, तो उनको चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, और दैट एनर्जी is I think you know very well that energy is electrical energy। So electrical energy is uh, our need। And if we talk about the world energy scenario, and before this lecture we have already established a full place platform where the various points were traveling related to वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो। उसमें हम देखें कि वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो में एक ओपीईसी नॉन ओपीईसी कंट्री है, तो नॉन ओपीईसी कंट्री में एनर्जी काफ़ी जो है डिमांड में है, काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको ऐसे अल्टरनेटिव्स का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमारी एनर्जी की डिमांड को पूरा करते रहें और उन्हें अबंडेंट क्वांटिटी में जनरेट कर सकें। ठीक। Now, second, the most opponent of nuclear point to two main arguments: meltdown and nuclear waste।
what may be the most opponent of nuclear points? Though there are two types of there are 2 points regarding nuclear power plant. Uh, First one is meltdown, another one is nuclear waste. So there are two subheading. First is meltdowns and another is nuclear waste. So in this lecture we will discuss about the nuclear waste management. Now what is a nuclear waste? Now a nuclear waste is any form of byproduct and end product that releases radioactivity. न्यूक्लियर वेस्ट जो है एक बायो प्रोडक्ट ही है, बाई प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट है, जिससे क्या होता है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस अकर करता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस वो सारे निकलते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट says the how to safely dispose of nuclear waste is pivotal for the continued operation of nuclear power plants, safety of people living around dump sites, and prevention of proliferation of nuclear materials to non-nuclear states. Actually, the topic is in your syllabus, that is the proliferation of nuclear materials to non-nuclear states. ठीक है, जो proliferation of nuclear materials, this is your main topic in the unit 5, which you have to study in the exam point of view. I think this is very important topic. And what is the proliferation of nuclear materials? Basically proliferation of nuclear materials is a process जिसमें कि हम क्या भी करते हैं, जैसे कि मान लो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ बाई प्रोडक्ट और कुछ एंड प्रोडक्ट होते हैं, जिसका जो कि एनवायरनमेंट को और पावर प्लांट के कई किलोमीटर्स जो क्लोज एरियाज़ हैं वहाँ के रहने वाले पब्लिक को एक हार्म पहुँचा सकता है। ठीक है, तो उस हार्म को रोकने के लिए, हार्मफुल ना हो ऐसे पावर स्टेशंस, उसको रोकने के लिए हमको उसके सेफ्टी और मेजरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई थिंक वी हैव टू फोकस for that point is how to safely dispose of nuclear waste is pivotal for the continued operation of nuclear power plants. ठीक है, तो कैसे हम सेफली डिस्पोज करें न्यूक्लियर वेस्ट को, दिस इज द वेरी सीरियस क्वेश्चंस। किस लिए सीरियस क्वेश्चन है? एक्चुअली कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट इन फ्यूचर अगर ऑपरेट इन फ्यूचर अगर वो चलेगी तो उसके लिए अगर चारों ओर का एनवायरनमेंट सही रहेगा तभी उसको चलने दिया जाएगा, नहीं तो वो वहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक, तो इस न्यूक्लियर वेस्ट का इसको कैसे पाइवोट किया जाए कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, या कहें कि पब्लिक जो आसपास रहती है डंप साइट्स में वो कैसे सेफ रहें, और या बोले कि प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स को नॉन न्यूक्लियर स्टेट में कैसे प्रायोरिटी दी जाए, कैसे सेट किया जाए कि इससे कोई भी हजार्डस इफेक्ट जो है ह्यूमन बीइंग को ना पहुँचे, एनवायरनमेंट को ना पहुँचे। ठीक, तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को सक्सेसफुल ऑपरेट करने के लिए ये चीज़ जरूरी है। ठीक, नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल? आई थिंक we have already discussed these topics, but I want to give a very short and brief review on the nuclear fuel cycle. Actually what happens, most of the nuclear waste comes from the byproducts of the nuclear fuel cycle. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में बाई प्रोडक्ट से न्यूक्लियर वेस्ट फॉर्म होता है, और दिस साइकिल टिपिकली स्प्लिट इनटू द 3 सेक्शंस। ठीक है, और ये जो फर्दर न्यूक्लियर जो वेस्ट होते हैं, ये फर्दर जो 3 कैटेगरी में स्प्लिट होते हैं, वो कौन कौन से 3 कैटेगरी है? फर्स्ट इज फ्रंट एंड,
Next one is service period, and the last one is backend. Okay, FSB, F for front end, S for service period, and B for backend. Okay, so there can be intermediate stage that can include the reprocessing of nuclear waste elements. Here the some images are over here. From this image you can see uh, this system. Now, how the nuclear fuel cycle can be continued? Here you can see the uranium mine. After the mining, uranium is drained from the Earth's 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 uh, Earth's crust. Now the uranium is drained from that portion. Then after that processing, after the mining, what is the next process is to be done? That the next process is ore processing. Because after the ore processing, we can extract the main material. Now, this after the ore processing, the enrichment takes place, and after the enrichment, what happens? Enrichment is all about the purity of the uranium atom, and then the fuel production takes place. Now, from the fuel production, this goes for the power reactor. When the fuel goes in the power reactor, then with the help of this fuel, some energy in the form of nuclear is generated, and that type of energy is reprocessing, and that after the reprocessing, it goes for the fission product for disclosure. Okay, this I think this is the end product, and this product is to be managed. Now, uranium mine, ore processing, fuel production, power reactor, and used fuel disposal. Now, the this slide is related to classification. This slide is related to classification, and what is the how we can classify the some specific terms like nuclear waste. Nuclear waste is segregated into several classifications. So there may have various points regarding the classification of nuclear waste. First one is the low level waste. And what is the low level waste? Actually, the low level waste is not so dangerous, but sometimes requires shielding during handling. Okay, so what is the low level waste? Low level में क्या होता है, वो ज़्यादा dangerous नहीं होते हैं, but on the operation time इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जब वर्कर काम कर रहे होते हैं तो उसको उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ड्यूरिंग हैंडलिंग शील्डिंग की ज़रूरत होती है. ठीक, नाउ द नेक्स्ट level waste is the intermediate level waste. Now the intermediate level waste typically is chemical sludge and other products from reactors. Okay, now the next, the low level waste हो गया, intermediate हो गया, then high level waste consists. What is the high level waste? Actually, the high level waste of fissionable elements from reactor cores and transuranic wastes. Okay, now transuranic waste क्या होता है? हाई लेवल वेस्ट क्या हुआ भाई? फिजनेबल एलिमेंट्स रिएक्टर कोर्स से और ट्रांसरेनिक वेस्ट जो मिलता है वो हाई लेवल वेस्ट होता है. तो ट्रांसरेनिक वेस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा वेस्ट होता है जिसमें ट्रांसरेनिक अल्फा एमिटिंग रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं दैट हैव द हाफ लाइफ यंगर देन 20 ईयर्स. ठीक, इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? सॉरी, लॉन्गर देन 20 ईयर, तो 20 साल से ज़्यादा होती है. व्हाट इज द हाफ लाइफ? एक्चुअली हाफ लाइफ इज दैट टाइम ऑफ ड्यूरेशन in after which the radioactive elements get reduced to its half amount. Okay, for to get stability. स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 20 साल से ज़्यादा का समय लेते हैं और आधा अमाउंट अपना गंवा देते हैं, आधे हो जाते हैं, और तब जाके वो स्टेबल होते हैं, वो हाफ लाइफ होती है. ठीक है, नाउ सो वी कैन प्रोसीड फर्दर. नाउ I think we should proceed further after the classification. What the point
what are those points which are very important. Now now we will discuss the classification of nuclear waste one by one. Now firstly we will talk about the low level waste. Now what is the low level waste? The low level waste is any waste that could be from a high activity area. ठीक है? Low level waste is any waste that could be from a high level activity area. और लो लेवल वेस्ट जो होते हैं दे अगर बाई परसेंटेज देखें तो लो लेवल वेस्ट जो होता है 90% ऑफ द वेस्ट होता है। इट मीन्स अगर 100 यूनिट वेस्ट है तो उसमें 90 यूनिट जो है लो लेवल वेस्ट होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट नेसेसरली कैरी एनी रेडियो एक्टिविटी। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लो लेवल वेस्ट होते हैं, जो 100 में से 90% होते हैं, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है। इसलिए जो है कम हजार्डस होता है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द हैंडलिंग प्रोसेस सील्डिंग की ज़रूरत होती है। ठीक। नाउ लो लेवल वेस्ट कैन low level waste may be splitted into the 4 categories: A, B, C and GTCC. Now actually right now we are on the present slides, and this slide is especially made for the intermediate level waste, ILW. So intermediate level waste, what is the intermediate level waste? Actually the intermediate level waste is all about the intermediate level waste related फैक्ट्स। ठीक। अब हम ये हमको जानना होगा। इसलिए 90% तो होगा लो लेवल वेस्ट। ठीक। अब 90% तो हो गया, तो 10% वाले जो बच रहे हैं ये सबसे ज़्यादा हैजार्डस हो सकते हैं। ठीक। लो लेवल वेस्ट आप हटा दीजिए। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट की। तो इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट के लिए क्या होता है भाई, जब हैंडलिंग करते हैं तो सील्डिंग की ज़रूरत होती है, और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसमें 7% तक बाई वॉल्यूम जो है इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है। ठीक है। नो फर्दर the point is all about the dependency of this activity. It is actually it is dependent on the amount of activity. It can be buried in shallow repositories, and it is not recognized in United States. Now finally we will talk about the high level waste. 90% हो गया, 7% हो गया, 90% होता है लो लेवल वेस्ट, और 7% क्या होता है इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट हो गया ILW। फिर जो 3% बचते हैं वो 3% क्या होता है, डेट इज द हाई लेवल वेस्ट। हाई लेवल वेस्ट ये इसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है, और रेडियो एक्टिविटी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। 3% है लेकिन बर्बाद करने के लिए सफिशियंट है। ठीक। सो यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ से प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाई लेवल वेस्ट हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी एंड इज थर्मली हॉट। नाउ एक्चुअली वेस्ट में 3% बाई वॉल्यूम होता है। ओके। I think this is very clear to you all. Now we can proceed forward. So किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे आपका हाई लेवल वेस्ट के बारे में। ठीक। अब यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्या होते हैं, क्रिएट करते हैं हाई लेवल वेस्ट। ठीक। हाई लेवल वेस्ट केवल 3% वॉल्यूम ऑफ वेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे डेंजरस बात जो है थर्ड पॉइंट में आपको दिख रही है, ये 95% ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसमें असिस्ट करता है। ठीक है। हाई लेवल वेस्ट को असिस्ट करता है 95% रेडियो एक्टिविटी। The fourth point says the current levels of HLW are increasing about 12,000 metric tons per year. जो करंट लेवल हाई लेवल वेस्ट का है वो लगभग जो है पर ईयर 12,000 मेट्रिक टन
कि रेट से बढ़ रहा है, ये दिस इज very dangerous data for us, because if such type of waste is increasing at this rate, then suppose that if this rate, I think 12,000 metric tons tons per year is a numerical value in which uh, the HLW is increasing. Suppose that if we will talk after 20 years, then what is the status of this type of waste? I think the HLW would be on its peak, और ये बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, ठीक है। तो हमारी जो लाइफ साइकिल है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो हार्मनी है ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के बीच का, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं कि HLW में जो हाई लेवल वेस्ट जो है, हाई लेवल वेस्ट में कौन कौन से एटम्स होते हैं, ठीक। प्लूटोनियम 238, 239, 240, 241, 242, Np 237, यूरेनियम 236, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक। अब ट्रांसुरेनिक वेस्ट क्या होता है, TRUW। तो ट्रांसुरेनिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसुरेनिक वेस्ट वो सारे वेस्ट होते हैं जो कि रेडियो न्यूक्लियाइड्स के, एक मिनट सॉरी, पार्डन मी, आई वांट टू रिपीट। Transuranic waste consists of all waste that has radionuclides above uranium, ठीक है। यूरेनियम से ऊपर वाले जितने रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं, वो जिसमें भी जिस फॉर्म में भी वेस्ट में रहते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट में, वो सारे के सारे ट्रांसुरेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है। TRUW typically have longer half lives than other form of waste, ठीक है। TRUW की सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाफ लाइफ का न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका मतलब अपने आप की क्वांटिटी आधी करने में ज़्यादा समय लेता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक, कंपैरेटिवली अदर टाइप ऑफ वेस्ट, एंड दिस आर टिपिकली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन द US, केवल US में रिकॉग्नाइज्ड किया, ठीक है। प्रेजेंट का अपडेट करेंगे। नाउ दिस स्लाइड इज related to the creation of nuclear waste. Now, nuclear waste is generated at all points of fuel cycle. Okay, जैसा कि हम फ्यूल साइकिल डिस्कस किए थे, माइनिंग होता है, माइनिंग के बाद क्या होता है भाई, रीप्रोसेसिंग होता है, एनरिचमेंट होता है, फर्दर उसका प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, फिर प्रोडक्शन से कुछ वेस्ट होता है, ठीक है। फिर इसको वो यूज़ करके हम रिसाइकिल यूज करके फिर से हम उसको क्या करते हैं भाई, प्रोसेस में लाके न्यूक्लियर पावर प्लांट में आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। फ्रंट एंड वेस्ट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ लो लेवल अल्फा एमिशन। जो फ्रंट वेस्ट होता है वो केवल उसमें लो लेवल अल्फा एमिशन होता है वेस्ट के फॉर्म में। सर्विस प्रोवाइड वेस्ट टिपिकली इंक्लूड्स LLW, ILW, ठीक है। हम आपको बताए थे ना, वेस्ट जो क्लासीफाई किए तो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड में लो लेवल अल्फा एमिशन वेस्ट होता है। फिर सर्विस पीरियड वेस्ट होता है, इसमें लो लेवल वेस्ट और इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है, ठीक है, सच है कंटामिनेटेड रिएक्टर हाउसिंग एंड वेस्ट फ्रॉम डेली ऑपरेशन। बैक एंड वेस्ट नॉर्मली क्या होता है, दिस इज द मोस्ट रेडियो एक्टिव एंड इंक्लूड्स स्पेंट फ्यूल रॉड्स एंड रिएक्टर कोर्स, ठीक। फ्रंट सर्विस पीरियड, फ्रंट एंड वेस्ट, सर्विस पीरियड वेस्ट SPW, और बैक एंड वेस्ट। फ्रंट एंड वेस्ट में लो लेवल अल्फा एमिशन वेस्ट होता है, सर्विस पीरियड वेस्ट में LLW और ILW होता है, LLW लो लेवल वेस्ट, ILW इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, ठीक। जिसमें क्या होता है, कंटामिनेटेड रिएक्टर हाउसिंग और वेस्ट फ्रॉम द डेली ऑपरेशन, ठीक है, सर्विस पीरियड वेस्ट, ठीक। जब सर्विस पीरियड वेस्ट नाम ही से क्लियर है कि जब सर्विस हम दे रहे हैं, जब प्रोसेसिंग चल रही है, तो उस ड्यूरेशन में जो वेस्ट होता है सर्विस पीरियड वेस्ट LLW, ILW, ठीक। फिर बैक एंड वेस्ट में क्या होता है, HLW होता है, ठीक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें,
front end waste consist मोस्टली ऑफ LLW एंड ILW, ठीक है। फ्रंट एंड वेस्ट में मेनली क्या होता है, लो लेवल वेस्ट और इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है, ठीक। नाउ द प्राइमरीली फ्रंट एंड वेस्ट इज डिप्लीटेड यूरेनियम एंड रेडियम, ठीक। DU हैज सेवरल यूजेस ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी मिक्स विद रेडियम टू फॉर्म रिएक्टर फ्यूल। तो इसको रिएक्टर फ्यूल के फॉर्म में बनाने के लिए इसको मिक्स करते हैं यूरेनियम के साथ, ठीक है। फ्रंट एंड वेस्ट को यूरेनियम के साथ मिक्स करके रिएक्टर फ्यूल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक। इसके कई सारे यूजेस होते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी 19,050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मरकरी से भी ज़्यादा होती है, ठीक। प्राइमरी फ्रंट एंड वेस्ट इज डिप्लीटेड यूरेनियम एंड रेडियम, ठीक। फ्रंट एंड वेस्ट जो होता है क्या होता है, डिप्लीटेड यूरेनियम एज वेल एज रेडियम होता है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, सेवरल यूजेस करते हैं, और इसको अगर यूरेनियम के साथ मिक्स कर दें तो इसको एज ए रिएक्टर फ्यूल भी यूज करते हैं। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं सर्विस पीरियड वेस्ट की। सर्विस पीरियड वेस्ट में जो वेस्ट होता है वो इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट मोस्टली टाइम कौन से वेस्ट होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट पे ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मली जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसी ड्यूरिंग दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो मोस्टली वेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, सर्विस पीरियड वेस्ट होते हैं, ठीक। स्पेंट फ्यूल रॉड्स आर द मोस्ट डेंजरस वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। सबसे जो डेंजरस वेस्ट होता है वो स्पेंट फ्यूल रॉड्स होते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज बैक एंड वेस्ट। In the back end waste, you can see the first point, that is the nuclear waste developed during the back end of the fuel cycle is the most dangerous and includes most of the HLW, it means high level waste produced। और आपको पता है हाई लेवल वेस्ट में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होते हैं, ठीक। वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, 3% ऐसे हो सकते हैं वेस्ट, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होता है भाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसमें जनरेट होता है। So most back end waste emits both gamma as well as beta particle। और जानते हो गामा पार्टिकल्स में गामा रेडिएशन होते हैं, उनमें इनका पेनिट्रेशन जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। आल्सो द यूरेनियम 235, नेप्टूनियम 237, प्लूटोनियम 238 एज वेल एज अमेरिकम 241 आर फाउंड इन ब्लैक एंड बैक एंड वेस्ट। तो यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम 241, ये सारे के सारे जो है बैक एंड वेस्ट के फॉर्म में होते हैं। Here the waste management for low level waste. This is the mapping over here for the WIPP facility. There are several options available for the disposal of low level waste due to its lack of radioactivity, ठीक है। लो लेवल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक। वेस्ट आइसोलेशन पायलट प्लांट होता है इसके लिए, ऑन साइट डिस्पोजल। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस नहीं होता है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए हम इसका जो है डिस्पोज करने के लिए सिस्टम जो है इन द प्लांट ऑन साइट डिस्पोजल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नाउ द ट्रीटमेंट फॉर लो लेवल वेस्ट, फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, और अनदर वन इज आयन एक्सचेंज and evaporation, incineration, compactation, solidification. This is the treatment for the low level waste. Waste management for HLW, जिसमें रेडियो एक्टिविटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना भाई। मोस्ट कॉमन यूटिलाइज्ड ऑप्शन रिएक्टर पूल्स आर ड्राई कास्क स्टोरेज। इसके लिए क्या होता है, ड्राई पूल्स और ड्राई कास्क स्टोरेज, ठीक है। यहाँ दिस इज द मैप इज गिवन ओवर हियर फॉर टू डिस्क्राइब
the location of storage sites for nuclear waste in the US. Now the second point is uh, all about that thing, and that thing is uh, that the thing is that the other options for waste management include deep geological storage, transmutation, reuse, launching it into space. यही चार ऑप्शन हो सकते हैं हमको वेस्ट मैनेज करने के लिए, जो हाई लेवल वेस्ट होते हैं। ये बहुत पक्की बात है, ठीक है। तो क्या है भाई, इनको या तो जियोलॉजिकली इसको स्टोर कर दिया जाए, या तो इनका रीयूज कर दिया जाए, या तो इनको लॉन्च कर दिया जाए स्पेस में। स्पेस तो इनफाइनाइट है ना। और द ट्रीटमेंट, and this slides is all about the treatment, and a treatment is all about the those points in which the waste is to be managed. The most common initial treatment of waste is vitrification. In this process waste is first mixed with sugar. वेस्ट को शुगर के साथ मिक्स करते हैं और फिर इसको एक हीटेड ट्यूब के थ्रू क्या कराते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। किस लिए, डीनाइट्राइट करने के लिए मटेरियल। और फिर ये मटेरियल जो है फर्दर फर्नेस में डालते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है और इसको ग्लास के साथ मिक्स करते हैं। फिर जो मॉल्टन ग्लास है उसका मिक्सचर जो है पोर करते हैं इन स्टील सिलेंडर और वेल्डेड सेट में, ठीक। और ट्रीटमेंट इज कंटिन्यू। फर्दर मिड लेवल एक्टिव वेस्ट जो होता है वो दैट इज टू बी ट्रीटेड विद द आयन एक्सचेंज, देन process reduces the bulk volume of radioactive elements, and finally this is to be mixed with the concrete for a solid storage form. Now the treatment is continued. What is the next point? This is a new method for storing nuclear waste, and it was developed in 1978, and its attempt to hold radioactive material in crystalline matrix. Now the currently is used for military waste management at Savannah river site. जो ये currently इसका यूज हो रहा है मिलिट्री वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है, और इट कैन होल्ड 50 to 70% वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये हाई लेवल वेस्ट को स्टोर करने की बात हम बता रहे हैं। फिर डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी को भी हम देख सकते हैं, यूका माउंटेन साइट, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर हैंडलिंग न्यूक्लियर वेस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर हैंडलिंग न्यूक्लियर वेस्ट, डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी, टिपिकली केप्ट सेपरेट फ्रॉम द एक्चुअल प्लांट्स। इसको एकदम दूर रखते हैं जो पावर प्लांट्स हैं उससे भी, एंड बरीड फार बिलो ग्राउंड, और ज़मीन के काफ़ी नीचे जो है इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक। और ये जो सबसे पहले यूज हुआ था 1999 में यूएस में यूज हुआ था, ठीक है। और करंट रिसर्च जो है यूका माउंटेन पे चल रहा है। ट्रांसमुटेशन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, इट रिड्यूसेस transuranic waste. It is the integral fast reactor, बैंड यूएस में बैंड किया था 77 से 1981 तक, बिहेव्स एज लो एनरिच्ड यूरेनियम, रिसर्च नाउ इज सब क्रिटिकल रिएक्टर्स। फिर हम बात करेंगे रीयूज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। रीयूज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, इसमें CS-137 स्ट्रॉन्शियम 90 जो है ऑलरेडी यूज होता है ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। जो कुछ वेस्ट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप के फॉर्म, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के फॉर्म में, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये रिड्यूस कर सकता है HLW को, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकता। कौन सा, इसका रीयूज वाला ऑप्शन। एलिमिनेट नहीं कर सकता है लेकिन रिड्यूस कर सकता है। अगर इसको हम स्पेस में लॉन्च कर दें, then near infinite storage space completely removes waste from biosphere, technical risk and problems. This is the main point behind to launch the waste into space, and the political and entanglement. फाइनली आपको कंक्लूजन क्या यहाँ पे समझ में आया, कंक्लूजन यहाँ पे
अगर देखिएगा तो यहाँ पे कंक्लूजन आपको बहुत क्लियर है कि जो हाई लेवल वेस्ट है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है, एंड दिस ए बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेसेस इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो वेस्ट निकलते हैं 3% इनका बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है, वो हाई लेवल वेस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी जनरेट करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो उसका हैजार्डस इफेक्ट किस पे पड़ सकता है, पब्लिक पे पड़ सकता है, ठीक। नाउ द बोरोसिलिकेट ग्लास मोर कॉमन स्टोरेज के लिए हो सकता है, और सेवरल वैल्यूज बीइंग रिसर्च फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ HLW। और जैसे यूका पर्वत माउंटेन का आपको बताया है, उस पर भी रिसर्च चल रहा है। कई सारे ऐसे रिसर्च हैं जो हाई लेवल वेस्ट के लिए अभी भी क्या है, प्रोजेक्टेड है, चल रहा है। ओके, सो any comment if any query is arising in your mind, then just put in comment box, and definitely I will answer for that question. Okay, thank you.